Hi there, in this particular video, we'll be understanding how to calculate fees, the management fee and incentive fee for hedge funds. Not exactly hedge funds, but rather fund of funds. Hedge fund का हमने एक example already कर लिया है जहाँ पे 220 का structure हमने लिया था. Here we'll be talking about fund of funds. Alright, so what exactly fund of funds are? Alright, I say for example, I am an investor. So मैं एक fund of funds को पैसा दे रहा हूँ. Alright, say for example, I am giving them $10 million. So fund of funds क्या करते हैं? अलग अलग hedge fund में invest करते हैं. तो मैंने एक फंड ऑफ फंड को पैसा दिया, उसने क्या किया, उसने अलग अलग हेज फंड्स में अपना अपना पैसा जो है डाल दिया. और इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो यू गेट द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट अमॉन्ग डिफरेंट हेज फंड्स गिवन दैट यू गिव योर मनी इन फंड ऑफ फंड. हाउएवर देयर इज अ ड्रॉबैक, आप इसको भी फी देते हो और इनडायरेक्टली आप सोचो तो आप ये सारे हेज फंड्स को भी फी दे रहे हो, बिकॉज ये फंड ऑफ फंड उनको फीस देने ही वाला है. ऑलराइट, नेवर माइंड, हम लोग अभी कैलकुलेट करने वाले कि फंड ऑफ फंड्स का कितना फी हमारा लगता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जांपल. सो एग्जांपल में देयर इज एन इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ $60 million. ऑलरेडी यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू फंड ऑफ फंड्स. There the fee structure is 1,10, that is 1 is the management fee and 10 is the incentive fee on year end values. Alright, तो ये चीज हो गई. जो 60 million फंड के पास है, that is getting divided in 40%, 40% but 40 million is going to another fund. Again, this is an hedge fund. The name of the hedge fund is Alpha. Alright, and it is going to another hedge fund that is Beta. So 60 million में से 40 यहाँ चला गया, 20 यहाँ चला गया. अब एक साल बाद the 40 million has increased to 45 million. कौन से वाले फंड में? पहले वाले फंड में. और वही एक साल बाद जो 20 मिलियन हमने बीटा में डाला था, that has increased to 28 million in my beta. So what we need to calculate is we need to calculate the investors return net of fees. Alright, this is something that we need to calculate. Year end values कितनी हमारे पास? हमको सारे calculations year end values पे करने हैं. So year end values कितनी है? 45 plus 28. 45 plus 28, 73 million is the year end value पूरे फंड की. Rather I would say fund of fund की. Alright, fund of fund की. The management fee that we need to calculate is 1% on year end value. Year end value कितनी है? 73. 73 का 1% is nothing but 0.73 million. Quite simple. Alright. Incentive fee भी 10% है, पर किस पे? year end value पे. तो year end value कितनी है? 73 minus 60 into 10%. क्यों minus 60 किया? Because when we calculate the incentive fee, we calculate on the profit that is being generated, and here the profits are based on the year end value. So year end value is 73 and you had begun with 60. So 73 minus 60 is 13. 13 into 10% is 1.3 million. Is nothing but 1.3 million. Alright, that is your incentive fee. तो फंड ऑफ फंड की टोटल फी कितनी बनी? 0.73 प्लस 1.3. ऑलराइट, ये उसकी टोटल फी बनी होगी 2.43 के आसपास, 2.03 के आसपास जो आती है. ऑलराइट, नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, द क्वेश्चन सेज इन्वेस्टर का रिटर्न निकालो नेट ऑफ फीस. तो वैल्यू ऑफ फंड बचा कितना है? 73 तो ग्रॉस पे था, माइनस 0.73 हमने मैनेजमेंट फी दे दिया, 1.3 हमने इंसेंटिव फी दे दिया, तो 70.97 बचा है. Pause the video for a second and make sure that you calculate it on your own and you figure out these two values. So 70.97 बचा है. Now इन्वेस्टर का रिटर्न कितना हुआ? उसने पैसा डाला था 60, अभी बचा कितना है? 70.97. So 70.97 divided by 60 minus 1, I think 18.3% is something that you'll get. Alright, so that is the return that you've calculated. Again, pause the video for a second and make sure you're doing the calculations on your own. So this is how you exactly work around for fund of funds on the return basis कि return कैसे निकलता है. And secondly, you also need to, if you simply look at कि अगर मैं directly इन दोनों funds में पैसा डालता अल्फा और बीटा में, है तो ये hedge funds ही, अगर directly इनमें पैसा डालता तो मेरा पैसा बनता 73 divided by 60. ऑलराइट, क्योंकि ये फीस मेरे को नहीं देनी पड़ती. कौन सी? ये वाली नहीं देनी पड़ती. अब आप लोग पूछोगे ये फंड को तो फीस दी है हमने. ऑलराइट, हमारे फंड ऑफ फंड वाले ने इन दोनों फंड को तो दी होगी फीस, पर ये जो वैल्यूज आई है 73 मिलियन की, ये वो चीज़ को डिडक्ट करने के बाद आ चुकी है, तो ऑलरेडी वो चीज़ माइनस हो चुकी है. तो यूल सी देयर इज एन इंक्रीमेंटल रिटर्न. ऑलराइट, 20% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ये. सो दिस इज हाउ एक्जैक्टली थिंग्स वर्क आउट. अगर आप डायरेक्टली फंड में पैसा डाल रहे हो तो आपको थोड़ा पैसा रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, अगर आप फंड ऑफ फंड में डाल रहे हो तो आपको थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा, बिकॉज फीस 2 बार चार्ज हो जाती है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ एक्जैक्टली यू नीड टू वर्क अराउंड. बट हाउएवर गिवन दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन फंड ऑफ फंड्स, यू गेट द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट राइट अवे. आपको अल्फा और बीटा ढूंढने नहीं जाना पड़ता, दो अलग अलग हेज फंड्स, वो आपके फंड ऑफ फंड ने करके दे दिया है. सो देयर आर डेफिनेटली सम बेनिफिट्स, बट एट द वेरी सेम टाइम देयर आर सम ड्रॉबैक्स एज वेल, व्हिच वी जस्ट कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ फी, कि आपका फी ज्यादा लग रहा है. ऑलमोस्ट देयर इज अ डिफरेंस इन योर रिटर्न बाय 2 to 2.5%. Alright, so this is exactly that I wanted you to know about fund of funds, about how exactly you do your calculations. Thank you.